कह सकते कि इसका असर सिर्फ बड़ों पर है, बच्चों पर नहीं। जैसा कि मैंने कहा, आपके बच्चों के सेल फोन है। ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मर्दों की बात है, औरतों की नहीं, कि क्योंकि सेल फोन्स मर्द पास भी हैं, औरतों के पास भी हैं। ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अमीर लोगों का प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों का नहीं है, क्योंकि आज सेल फोन मतलब छोटे से छोटे घर में है, घर के सदस्यों के पास है, एंड राइटफुली सो। इट्स अ फैंटास्टिक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ फैंटास्टिक पीस टूल फॉर कम्युनिकेशन। इससे जानकारी दुनिया भर की आपकी फ़ोन पे आ जाती है, बट वी आर जस्ट सेइंग कैन दिस बी यूज्ड सेफली। इस टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा सेफ बना दें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, एंड our request to the industry would be that these antennas, this Wi-Fi system that we have, can this be further smartened to be safe for us? Nobody gains if in fact we bankrupt an industry. No one's interested in doing that. I've written books about what happens when you wait too long in an industry and you do bankrupt it. That's what happened with parts of the asbestos industry, and the tobacco industry is diversified now. But we're not looking to be seeing an industry suffer. We want people to prosper, and we understand you really can't call it a smartphone if it kills brain cells. So let's get really smart about how we design this technology, and I'm confident that all of the smart software engineers in India are going to come up with better operating systems and better hardware to make these things safer and work more efficiently. Just as one example, in the United States today there's a growing movement to make schools use wired versus Wi-Fi. In Israel, with all the problems of Israel now, they've created a national institute just last month for wireless and cell phone safety. And that national institute recommends no Wi-Fi in schools until age 8, and then only 2 to 3 hours a week. My friend has a cell phone, so I need to have one too. Parents come under pressure from the kids. I have a pediatrician, who has literally looked after my kids, and he's a very well-known person in South Mumbai. I was talking to him, and he said, why don't parents, but that is if they're aware, why don't parents say no to the children? But we have to make the parents aware. We have to make all our people aware of what a phone might do. There's a darker side to technology. There always is. There's a darker side to everything. Forget just a phone. आप अच्छा खाना भी हर रोज खाएंगे ना, तो भी तबीयत बिगड़ जाएगी. Overuse of anything will cause you harm. Now here we are overusing a very fantastic and a very a very fine piece of technology as though it's a toy, but it's not a toy, and that's all we really need people to understand. Yes. And really that's where I think you come in. The more people get to know, they themselves will start waking up for themselves. Then you won't have just 3 people sitting here and talking to you. Your whole community will wake up, and they will pressurize the government to seriously take some action. But we don't want this to take years. ऐसा नहीं हो सालों लग जाए. हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इसके कान के like they said, इसके कान की सुनने की क्षमता गुम हो गई, दूसरे के बच्चे नहीं हो रहे हैं, छोटे बच्चों को ट्यूमर्स हो रहे हैं, कान में हो रहे हैं, इधर दांत में हो रहे हैं. ये सब कलेक्ट करते करते साल ना निकल जाए, बहुत सारे लोगों की जान ना निकल जाए, और तब हम लोग बोले अरे यार किया क्यों नहीं. तो जो कल कर सकते ना आज कर लें, और जो आज कर ले तो वो तो अभी कर लें. तो हम बस उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी मदद चाहते हैं. We'd still like your support if you believe in it, if you believe what you've just heard, if it made sense to you. If it made sense to you, then with your heart, put your heart into your work, and you will be supporting it. And I think, and coming to that, really, if we have your support, you don't really need faces.
You just need yourself. ये इनकी डॉक्टर डेविस की लेटेस्ट किताब है जो कि 2010 में पब्लिश की गई थी यूके एंड यूएसए में। ये अपनी 3rd एडिशन यहाँ पर लॉन्च कर रही है। आज आपके सामने हमने खोला है, अब ये यहाँ पर इंडिया में भी मिलेगी। What it is about? Here she has traced the history of mobile telephony. कैसे ये मोबाइल कमर्शियल होता गया, आज किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और इससे क्यों बचना चाहिए। हमारा ये नहीं कहना है कि आप फोन बंद कर दीजिए, अब वो नहीं होगा, मगर आप उसे कम इस्तेमाल कीजिए, ये मैं कहती हूँ। आप उसे सेफली इस्तेमाल कीजिए, ये हम सब कहते हैं, क्योंकि ये एक फ़ोन है, ये हम खिलौने की तरह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खिलौना नहीं है, ये बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। ये फ़ोन पर वायर नहीं है, फिर भी आप दुनिया के उस कोने तक बात करते हैं। तो कैसे होता है? ये हवा में लहरों की तरह की वजह से होता है। ये लहरें जो हैं, ये जब बार बार आपके शरीर से टकराती हैं, आपके दिमाग से टकराती हैं, बार लगातार, तो हानि पहुंचाती है। तो आपको 10 दिन में कुछ नहीं होगा, मगर आपको 10 साल में प्रॉब्लम्स होंगी। और मतलब मैं विदाउट डाउट कह सकती हूँ आपको प्रॉब्लम्स होंगी। मैं सिर्फ पहले अपनी खुद की मदद कर रही थी, क्योंकि मेरे घर के काफ़ी निकट कोई 14 एंटेनाज लग गए सडनली। तो जब वो लगे और मुझे किसी ने बताया कि ये सही नहीं है, तो पता ही नहीं था एंटेना क्या होता है ये क्या है। तो फिर अपने घर को चेक करवाया रेडिएशन के लिए, वहाँ से पता लगने लगा ये क्या है। फिर कोशिश रही कि ये यहाँ से हट जाए। चलिए 2 साल लग गए मुझे, फाइनली वहाँ से हट गए, मगर फिर लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे, हम अपने लिए क्या करें, आप हमारी मदद कीजिए। उनकी थोड़ी बहुत मदद करते मैं और सीखने लगी इसके बारे में, और आज मैं आपके साथ। अब मैं आपको खुद अपनी कहानी बताती हूँ। मैं 10-15 साल से 20 साल से फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। 10 साल तक, पहले 5-6 साल तक तो शायद मेरे पास एक फ़ोन था और 100 लोगों में किसी और एक पास था। कॉल का कोई रेट होता था 80 रुपये मिनट, तो हम लोग क्या, मेरे पास फ़ोन है ऐसा फूल होते थे, फ़ोन यूज़ नहीं करते थे मच। फिर कुछ सालों में सबके पास फ़ोन आने लगे, कॉल के रेट्स कम होते गए, और जैसे कम होते गए हम और उस पर बकबक करने लगे। मैंने कोई 10 साल तक अपनी ज़िंदगी में इस फ़ोन को बिल्कुल आपकी तरह यूज़ किया है। घंटों तक किसी से बात करना, उस समझ नहीं आना और ध्यान ही नहीं देना। आज खुद I know my body reacts to radiation. मैं फ़ोन रखती हूँ ना तो मुझे अंदर से अजीब सेंसेशन होते हैं, तो मुझे पता है कि ये कुछ सही नहीं है और ये मुझे अब हो गया है। चलिए, I am now aware, so I can help you. ताकि, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको स्लीपलेसनेस हो, कान में कोई प्रॉब्लम हो, इरिटेबिलिटी हो, एंजाइटी हो, हेडेक्स हो, और आपको उसका कारण नहीं पता है, तो आप उसी बात को बार करें और आपकी प्रॉब्लम जाएगी नहीं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। But at least if you can somewhere relate, is it due to my overuse of phone? You will then start taking care and you will at least check for yourself कि ये इसकी वजह से है, तो मैं इस वजह को अपने से थोड़ा दूर कर दूँ। मगर अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प एवरीबॉडी। मगर डेफिनेटली इससे थोड़ी सी दूरी रखिए, अपने कॉल्स छोटे करें, यानी सिर्फ काम की बात करिए। आप ये जो पॉकेट में लेकर घूमते हैं ना 10 घंटे, आप सब बिल्कुल मत करिए। आपका अगर कोई बैग है तो उसमें डालिए। बच्चों को, यंग टीनेजर्स को तो प्लीज़ बोलिए अपने पॉकेट में ना रखें, क्योंकि घंटों तक वो रेडिएटिंग इंस्ट्रूमेंट शरीर के बहुत करीब रहता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे जो कि काम सही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट रेडिएशन, और फिर कुछ सालों में यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। सो थोड़ा डिस्टेंस रखिए अपने फ़ोन से, फ़ोन चिपका कर मत रखिए। ये तो आपको की कंपनी भी कह रही है, मगर
उनका प्रिंटिंग इतना छोटा होता है, हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं है. सो प्लीज़ कीप अ डिस्टेंस. फ़ोन को अपने वायर्ड हेडसेट ले लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए. सोने के करीब मत रखिए. वाईफाई राउटर्स अपने करीब मत रखिए. जब काम कर रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में वाईफाई आपके पास है, बिल्कुल प्लीज़ उसको कहीं क्रॉस सेट कर लीजिए. सो टेक सिंपल प्रिकॉशंस बट बी अवेयर. आपको और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पर आइए या हमारा एक वेबसाइट भी है, प्लीज़ आइए. यू विल गेट डिटेल व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ टुडे. आप अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए. बाकी काम चल रहा है एंड वी विल ट्राई टू मेक चेंजेस. देखिए, सबका बिजनेस है, हमारा तो चलिए एटलीस्ट हम पर कोई उंगली नहीं उठ सकती. मेरा तो ये बिजनेस ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है. मुझे पैसे नहीं कोई देता यहाँ पर ये बात करने के लिए. मैं सिर्फ आपको अपनी सच्चाई से बात कर रही हूँ कि आप मेरी बात सुनिए, इससे सावधान रहिए. इसको फेंके मत, मगर इसको खिलौने की तरह इस्तेमाल भी मत कीजिए. थैंक यू सो मच.